شہری اولیا کی سب سے بڑی تفریح گاہ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ شاہ شمس پارک کی جھیل گندے پانی سے بھر گئی، تعفن کے باعث سانس لینا بھی محال، جھولے بھی خراب، شہری سستی تفریح سہولیات سے محروم ہو گئے۔ ملتان کی سب سے بڑی تفریح گاہ کا کوئی وارث نہیں۔ شاہ شمس پارک کی جھیل گندے پانی سے بھر گئی، جبکہ جھولے بھی فعال نہ ہو سکے۔ دوسری جانب اعلان کے باوجود نئے جھولے بھی نہیں لگائے جا سکے۔ یہاں پہ جھولے تھے، وہاں پہ سارا گٹروں کا پانی آ رہا ہے، بدبو ہی بدبو ہے، کہیں مچھلی کا پانی آ رہا ہے، کوئی جھولے نہیں ہے یہاں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہر بار اعلان کیا جاتا ہے، لیکن نہ تو شاہ شمس پارک کی جھیل فعال ہوئی اور نہ ہی جھولے لگائے جا سکے۔ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 3 ایئر ہو گئے ہیں تقریباً، نہ ایسے ہی چل رہا ہے، نہ ادھر کوئی سہولت، نہ پانی کا پینے کا جو صاف پانی بھی نہیں ہے، دوسرا یہ کوئی سہولت نہیں ہے بس، اور کرکٹ جو پہلے کھیلنے کا سسٹم تھا وہ بھی نہیں ہے، دوسرا پھر واش روم، دوسرے زائرین آتے ہیں معذور لوگ، ان کے وہی واش روم پہلے بھی انہوں نے کہا کہ بنائیں گے دوبارہ، وہ بھی مطالبہ ان کا ختم ہو گیا۔ جھیل کے گندے پانی سے اٹھنے والی بدبو کے باعث شہریوں نے پارک کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ کیمرامین ہارون رمضان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ انتظامیہ کی غفلت، جنوبی پنجاب بھر میں پارکوں کی حالت خراب ہو گئی، فوارے، جھولے، چار دیواری اور بینچز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، گھاس ختم ہو گئی، جبکہ ٹریک کی اینٹیں بھی چوری ہونے لگی ہیں۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی بہاولپور کی غفلت، شہر کے چھوٹے پارکوں کی حالت خراب، جس کی وجہ سے شہری بیزار ہیں۔ کشمیر پارک اور اسپیشل چلڈرن پارک کرائے پر ہیں، کمرشل ایریا پارک، شادرہ پارک اور فرید گیٹ کے پارکس بھی ٹھیکے پر ہیں۔ ترجمان ڈپارٹمنٹ کے مطابق ٹھیکیداروں کو پارکوں پر قبضے سے منع کر دیا ہے۔ جلال پور پیر والا میں خواتین کی تفریح کے لیے بنایا گیا گلستان فاطمہ پارک بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث یہ پارک کچرا کنڈی کا مناظر پیش کر رہا ہے۔ پانی نہ دینے کے باعث گھاس ختم، جبکہ چار دیواری اور ٹریک کی اینٹیں چوری ہو گئی۔ شہریوں نے میونسپل کمیٹی انتظامیہ سے پارک فعال بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ رحیم یار خان میں ٹاؤن ہال پارک بھی انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ فوارے ناکارہ، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے ہیں، حفاظتی دیواریں اور بینچز بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے پارک کی خوبصورتی بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شہری کی ہلاکت کے بعد بہاولپور چڑیا گھر کی بندش کا معاملہ، کوئٹہ، چشتیاں، بہاول نگر اور دور دراز سے آئے سیاحوں نے چڑیا گھر کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ بہاولپور ایک خوبصورت شہر ہے اور اس کی تفریح گاہیں اور چڑیا گھر بھی بہت خوبصورت ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ چند روز قبل ٹائیگرز کے حملے میں شہری کی ہلاکت کے بعد چڑیا گھر بند ہے، جسے شہریوں نے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لوگوں تفریح کے لیے آتے، دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو ایسے حادثات ہوتے ہیں، ان کی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن عوام کو یہاں پہ کھولنا چاہیے اس کو۔ تمام عوام سیر و تفریح کے اس سے مستفید ہوں، لیکن یہ بند ہے، گیٹ بند ہے، یہ ناجائز ہے، زیادتی ہے ہمارے عوام سے۔ سیاحوں کا کہنا تھا کہ وہ اتنی دور سے چڑیا گھر دیکھنے آئے ہیں، متعلقہ حصے کو بند کر کے باقی چڑیا گھر کو عام شہریوں کے لیے کھولا جائے۔ جی بالکل، اس کو کھلنا چاہیے، ہم اب اتنی دور سے آئے ہیں، ہم نے اپنا رکشوں کا کرایہ دیا، اب ہم واپس جائیں گے، بہاول نگر سے ہم آئے ہوئے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم چڑیا گھر جائیں گے اور نہیں گئے۔ جی بالکل اوپن ہونی چاہیے، لیکن یہ تو اوپن ہے نہیں، اس لیے اب ہمیں واپس جانا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے کمشنر بہاولپور سے چڑیا گھر کھولنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ شہر اولیا کے باسیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا، پرانے خانیوال اڈے پر پرندوں کی مارکیٹ سے گزرنا محال ہو گیا، خریداروں اور بیچنے والوں کا رش، ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ انتظامیہ کی نااہلی نے شہریوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ پرانے خانیوال اڈے پر لگنے والے پرندوں کی منڈی نے تاجروں اور علاقہ مکینوں کو پریشان کر دیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ پرندوں کی مارکیٹ سے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، ساتھ ہی موجود پیٹرول پمپ اور بے ہنگم رش کی وجہ سے کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ جی سر جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہاں ہماری دکانیں ہیں، ہم اتنا کنفیوز ہوتے ہیں، اتنا اپسیٹ ہوتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی پیٹرول پمپ ہے، یہاں پہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، ہزاروں جانوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ ہٹا دینی چاہیے یہاں سے سر جی، اس کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے ہمیں۔ تاجروں کے ساتھ ساتھ علاقہ مکین بھی پرندوں کے غیر قانونی منڈی سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چھٹی کے روز گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پر آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے، جمعہ اور اتوار کو بچوں کی چھٹی ہوتی ہے، ان کو بھی جانے میں یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ یہاں سے ختم کی جائے۔ جمعہ اور اتوار کے روز لگنے والی پرندوں کی منڈی سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے۔ انتظامیہ پرندوں کی منڈی کسی کھلے میدان میں منتقل کرے۔ کیمرامین حسیب کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ بستی ملوک کے نواحی علاقہ لاڑ اور رنگ علی میں صاف پانی نایاب ہو گیا، مضر صحت پانی پینے سے
कई अफराद मौत के मुंह में जाने लगे। बस्ती मलूक के नवाही इलाके लाड़ का फिल्ट्रेशन प्लांट 5 साल से बंद है, जबकि मौजा रंग अली में फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद ही नहीं। दोनों इलाकों के लोग मुद्रे सेहत पानी पीने से खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो गए। अहले इलाका के मुताबिक अब तक कई अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद गुर्दे खत्म होने की वजह से आखिरी सांस ले रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, हाथ में होकर भी अपनी आवाज़ जो है आला हुक्मरान तक पहुँचा रहे हैं। तकरीबन इस टाइम 20 तो 30 मरीज हैं, जेड़े 40 तो 50 बंदा जड़ा साढ़ा इस दुनिया तो चला गया सिर्फ इसे साफ पानी न होने की वजह तो। इस बस्ती दे पूरे गांव दे 10-15 बंदे और बीमार हैं, इस पानी की वजह को बीमार हैं सारे। पानी लिहाजा मेहरबानी की वजह इतने प्लांट लाए वजह। अहले इलाका ने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने के बायस दूर दराज से साफ पानी खरीद कर लाना पड़ता है, जबकि अवामी नुमाइंदे भी लॉलीपॉप देते रहे। रूरल हेल्थ अस्पताल अयाजाबाद मॉडल डॉक्टर नासिर जान, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मुल्तान मोहम्मद हुसैन बंगश का कहना है कि जेर जमीन पानी खराब होने की वजह से 60% मरीज रिपोर्ट होते हैं। बेशतर जिगर, कैंसर, गुर्दों के अमराज और हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं, कई तो आखिरी स्टेज पर हैं। म्यूनिसिपल कमेटी में तो हमारे पास स्टाफ होता है, रूरल एरिया में कोई म्यूनिसिपल सर्विसेज का स्टाफ नहीं है कि वहाँ पे उसको लगाया जाए। और जहाँ तक ज़िला कौंसिल का तल्लक है, ज़िला कौंसिल में अभी अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा उसका मेजर फॉल्ट होता है जिस पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे होते हों, तो वो मूव किया जा सकता है ज़िला कौंसिल को। उसको हम कंसीडर, चूँकि हमारे फंक्शन में यूनियन कौंसिल को असिस्ट करना है इस फंक्शन में, तो वो हम उसको देख सकते हैं। बस्ती मलूक, अड्डा लाड़, अयाजाबाद मॉडल और दीगर नवाही इलाकों के फिल्ट्रेशन प्लांट यूजर कमेटी के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। बस्ती लाड़ के मुकीन 5 साल से साफ पानी पीने से महरूम हैं, जबकि मौजा रंग अली में वाटर फिल्ट्रेशन मौजूद नहीं। पंजाब सरकार को फौरी नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन टीम के हमरा मिर्जा जमील, रोही न्यूज, बस्ती मलूक। मौसम तब्दील होते ही पहनावे भी बदल गए। गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए रंगपुर के लंडा बाजार की रौनक बहाल। खरीदारों की खूब गहमा गहमी, शहरी गर्म मलबूसात और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। रंगपुर के शहरियों ने सर्दी बढ़ते ही लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। गर्म कपड़े, जर्सियां, टोपियां और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना था कि बाजार में अशिया महंगी होने की वजह से लुंडा बाजार का रुख किया, मगर यहाँ भी कोई चीज सस्ती नहीं। पिछले साल की निस्बत कीमतों में दुगना इजाफा हुआ। लुंडा बाजार से खरीदारी किसी इम्तिहान से कम नहीं। 200 में फरोख्त होने वाली जैकेट अब 600 रुपए में दस्तयाब है। कैसे खरीदें? हम बाजार पहले गए, बाजार महंगाई का रोज था, हमने लंडे में आके रिलीफ लेने के लिए लंडे में आए। अब लंडे में आए, जो हमें 60 रुपए का जुराबों का जोड़ा मिलता था, अब वो हमारे पास 200 रुपए भी हमें नहीं मिल रहा। जो दुकानदार हजरात है 300 मांग रहे हैं। हम गरीब आदमी, हमने अपना तन भी ढांपना है, अपने बच्चों के लिए कुछ गर्म मलबूसात भी लेने हैं। पिछले साल 200 का था, अभी 700 का बोल रहे हैं। ये बच्चा मेरे साथ है, बहुत हम टेंशन में है। हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारे पे रहम करे और महंगाई कम करे। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई के बायस कारोबार ठप, अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया। शहरी बहस करने के बाद खाली हाथ लौट जाते हैं। हालात बहुत खराब है, महंगाई की वजह से काम कोई नहीं है। पिछले साल छोटा कोट 300 का मिलता था, अभी वो 600 का हो गया। कम है नहीं, सारा दिन बैठा रहता हूँ, बिल्कुल हालात भी बिल्कुल खराब है, कम कोई नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई का जिन काबू करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। आगे बढ़े और आपको बताएं, मियां चनू के इलाके छपकला में लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। सर्दी बढ़ते ही लकड़ी 1000 से 1200 रुपए फी मन तक पहुंच गए। लकड़ी की कीमत बढ़ने के बाद शहरी शदीद परेशान हैं। सर्दी बढ़ते ही खुश्क लकड़ी की मांग में भी इजाफा। मियां चन्नू के इलाका छपकला में खुश्क लकड़ी की कीमत 1000 से 1200 रुपए फी मन तक पहुंच गई। शहरियों को लकड़ी की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है, आटा, दाल, चीनी और दीगर अशिया खरीदना मुश्किल हो गया है। ऐसे में खाना पकाने के लिए लकड़ी कैसे खरीदे? मसला ये है कि जो लकड़ खरीदने के हुए 1000 रुपए मन लकड़ दे रहे हैं, जलाने वाली लकड़। बस देखिए, पहले हम दाल सब्जी से तंग है कि ना दाल मिल रही है ना सब्जी मिल रही है। जो चीज़ भी लेते हैं पहले से एक से दूसरे दिन जाते महंगी मिलती है। अभी सोचा भाई सर्दी आ गई, कोई लकड़ी लेने जाऊँ तो जलाने के लिए लकड़ जो मिल रही है वो भी 1000 रुपए मन मिल रही है, 1000 से 1100 भी मन दे रहे हैं। तो हम गरीब आदमी इस वक्त किस तरफ जाए? शहरियों का मजीद कहना था कि घर का निजाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। टाल वालों ने भी लकड़ी की कीमत बढ़ा दी है। अब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की खरीदारी भी नहीं कर सकते। बहुत महंगाई है, ना कोई लकड़ी ला सकते हैं, ना कोई आटा ला सकते हैं, ना कोई सब्जी ला सकते हैं। बहुत जलील हो रहे हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि छपकला के लकड़ी टालों को चेक करके मुंह मांगी कीमत पर लकड़ी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मिर्जा अब्दुल सत्तार मुगल के साथ तजम्मुल हुसैन कुरैशी, रोही न्यूज, छपकला। अब आपको बताएं कि जहानिया समेत पंजाब भर में वसी पैमाने पर सूरजमुखी की काश्त जारी है।
1,25,000 एकड़ काश्त, जबकि पैदावारी हदफ 1,40,000 टन रखा गया है। मुल्क में ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए सालाना 4 अरब डॉलर से ज़ायद का खुर्दनी तेल दरामद किया जाता है। सूरजमुखी एक अहम तेलदार फसल है। इसके बीज से आला किस्म का तकरीबन 40 से 45% तेल हासिल होता है। इसमें विटामिन ए, बी, ई और के पाए जाते हैं। सूरजमुखी की सिफारिश करदा हाइब्रिड इकसाम की काश्त से ही मतलूबा पैदावारी हदफ हासिल किया जा सकता है। महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशंस को हदायत जारी की गई हैं कि वो काश्तकारों की रहनुमाई करें कि वो जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी अपनाकर जो सूरजमुखी है इसकी काश्त और दीगर पैदावारी अवामल जो हैं वो बरूए कार लाएँ, ताकि इससे बेहतरीन पैदावार हासिल की जा सके और जो मतलूबा अहदाफ हैं वो हासिल किए जा सकें, क्योंकि खुर्दनी तेल की दरामद पर जो है कसीर ज़र मुबादला जो सालाना खर्च करना पड़ता है उसको बचाया जा सके। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादर चट्ठा ने फील्ड फार्मेशंस को सूरजमुखी की पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारों की रहनुमाई का सिलसिला मजीद तेज करने की हदायत कर दी। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुटर, रोही न्यूज़ जहानिया। अहमदपुर शर्किया के नेशनल IIN जनरल अस्पताल में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। चेकअप, ऑपरेशन, अद्वियात और एन के मुफ्त टीका। अहमदपुर शर्किया के नेशनल IIN जनरल अस्पताल में प्रेस क्लब के इश्तिराक से फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल खान, डॉक्टर मलक असद अराई, डॉक्टर मोहम्मद शहराज खान ने मरीजों का मुआयना किया। अद्वियात और एनके दी 45 ऑपरेशन भी किए गए। रश के बाइस कुछ मरीजों को कल का वक्त दे दिया गया। सदर प्रेस क्लब सैयद नासिर महमूद रिजवी ने कैंप के इनेकाद पर डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल खान का शुक्रिया अदा किया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब डॉक्टर मुजम्मिल साहब का, इस धरती से इनका ताल्लुक है। हम दोनों के शुक्रगुजार हैं। दुखी इंसानियत और महंगाई के इस दौर में गरीब लोगों की मदद के लिए जो नेशनल आई हॉस्पिटल ने ये बेड़ा जो है अपने सर लिया है, और ये खिदमत जो है आज शाम तक जारी रहेगी आवाम की। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजम्मिल खान का कहना था कि फ्री आई कैंप में ऑपरेशन, अद्वियात और आंखें मुफ्त दी गई। मैं शुक्रगुजार हूँ अहमदपुर शर्किया प्रेस क्लब का, खास तौर पर सदर नासिर रिजवी साहब का और उनके साथियों का। ये शहर मेरे ख्वाबों की पनाहगाह है और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो अपने शहर में इस तरह के कार्य खैर देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। आज शहरियों ने महंगाई के इस दौर में फ्री आई कैंप के इनकार को खूब सराहा। कैमरामैन मार मोहम्मद नईम के साथ खादम हुसैन सुमरो, रोही न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। यहाँ आपको बताएं, अल मुस्तफा फार्म हाउस में CEO अलकायम इंडस्ट्रीज हाजी मुदस्सिर जोइया के फर्जंदान चौधरी मोहम्मद उस्मान और चौधरी अहमद हसन जोइया के वलीमे की तकरीब। शहरी ओलिया की मारूफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। ये मनाजिर हैं शहर मुल्तान में अल मुस्तफा फार्म हाउस के, जहां अलकायम इंडस्ट्रीज के CEO हाजी मुदस्सिर जोइया के फर्जंदान चौधरी मोहम्मद उस्मान जोइया और चौधरी अहमद हसन जोइया के वलीमे की तकरीब इनेकाद पसीर है। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, DGIB शेख मोहम्मद अफजल, अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान अल्लामा सैयद मजहर सईद काजमी, जनरल सेक्रेटरी वफाकुल मदारिस अल अरबिया कारी हनीफ जालंधरी, सज्जादा नशीन दरगाह चादर वाली सरकार पीर अली हुसैन शाह, डायरेक्टर हज रिहान खोकर, पीर सैयद फहद राशिदी, साबिक सूबाई वुज़रा अली हैदर गिलानी, डॉक्टर अख्तर मलिक, हाजी जावेद अख्तर अंसारी, मलिक सदाम राय, मोहम्मद अकरम शहजाद, दानियाल जरार खान और मलक अकील खोकर समेत दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की और नौ बहाते जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहम्मद उस्मान जोइया और अहमद जोइया दोनों को उनकी शादियां मुबारक हों। वो अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। इस आगाज़ उनके लिए मुबारक हो और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक उनकी ज़िंदगी गुजरे और वो एक दूसरे पर हुकूक वो अदा करें और अल्लाह इनको पुरसुकून ज़िंदगी नसीब फरमाए और नेक औलाद नसीब फरमाए। अपनी ईमान रखे, इनकी शादी मुबारक फरमाए, उन्हें ज़िंदगी की बेशुमार खुशियाँ और मसरतें फरमाए, इनकी सब दिल की नेक मुरादें पूरी फरमाए और उन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की फरमाए। इंतहाई खूबसूरत गुलदस्ता सजा है। अहम दीनी मजहबी शख्सियात भी जलवागर हैं। अभी दुआ हुई है, दुआ है अल्लाह ताला सब दुआएं कबूल फरमाए और उन दुआओं के असरात और समरात दोनों दुल्हों को देखना नसीब फरमाए अल्लाह ताला।
वलीमे की तकरीब में साबिक सूबाई वजीर मलिक जहांजेब बारन, सुपरिटेंडेंट जेल शहराम खान, सदर हाई कोर्ट बार राना आसिफ सईद, एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज फारूक डोगर, एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर शाहिद जोया, डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर अली रजा, डायरेक्टर एंटी करप्शन मलक राशिद नेमत खोकर, साबिक डीसी रहीम यार खान लतीफ खान, असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुकर्रम सुल्तान, एडवाइजर वफाकी मोहतसिब महमूद जावेद भट्टी, SSP ऑपरेशन इमरान खोकर, SP इन्वेस्टिगेशन राना अशरफ, साबिक MNA शेख तारिक रशीद, साबिक MPA सलीम लाबर, DG MDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद अकरम, साबिक टाउन नाजिम मियां जमील, अख्तर शरीफ जोया, शोजेब शेख, अनवर खान जोया और शेख फहद नईम समेत शहर की मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि वलीमे की तकरीब में सजने वाला गुलदस्ता बरसों याद रहेगा। मैं चौधरी मुदस्सिर जोया के बरखुदारान अहमद जोया और उस्मान जोया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एक ज़िंदगी के नए सफ़र पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सलामत रखे और उनका ये जो सफ़र है अज़वाजी ज़िंदगी का वो खुशियों और मुसरतों से भरा हुआ हो। अमूमन शादियों के ऊपर ऐसे खुशियाँ लोग नहीं बांटते मीडिया के साथ, ये नया ट्रेंड है और मैं समझता हूँ कि ऐसे भी होना चाहिए। तो अच्छा लगा आपको भी शादी के फंक्शन में हमारे साथ होने में और दोस्तों के साथ ही खुशियाँ बढ़ती हैं। दावत वलीमा में आपने देखा है कि कैसा मेहमानों का हसी गुलदस्ता सजा है। एक दफ़ा फिर चौधरी मोहम्मद उस्मान जोया, चौधरी मोहम्मद अहमद जोया, उनके वालिद ग्रामी, उनके तमाम दोस्त अहबाब, उनकी पूरी फैमिली को दिल की गहराई से मुबारकबाद। वलीमे की तकरीब में ब्रिगेडियर मोहम्मद लियाकत, जज FIA मलक इमरान आबिद, सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी, राव अब्दुल कयूम शाहीन, चौधरी अब्दुल वहीद आराई, मलक अब्दुल गफ्फार डोगर, शौकत हयात खान बोसन और मारूफ सनतकार एजाज दानिश और मुनव्वर कुरैशी समेत दीगर ताजिर बिरादरी ने शिरकत की। वलीमे की तकरीब के इख्तिताम पर अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान अल्लामा सैयद मजहर सईद काज़मी ने नौबिहाते जोड़े के लिए दुआ कराई। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान।